house today. And with your permission, I would also like to take this opportunity to thank the godlike people of Gagret, my parents, and all my well-wishers along with my mentors, because of whom I have been able to reach this house today. This is the first opportunity that has been given to me to speak in the house. I am very gracefully, I am very, very gracious to you. Also, you and I share a coincidence, sir. In the 6th Vidhan Sabha, you were the youngest member of the house. And today, when I've entered this house within the last 3 months, I feel it is the biggest privilege for me, biggest honor for me, that you are sitting on this chair, and under your guidance, under your able leadership, I will get to learn a lot in the next 5 years. I would also like to thank the Honorable Chief Minister, the Honorable Deputy Chief Minister, all the ministers and the members of this house, all the members of this August House. The last 3 months have also been a very enriching experience for me, be it the Secretariat, be it the working of the Vidhan Sabha. And I would like to thank you once again that you have given me an opportunity to speak today. I really appreciate my fellow colleague, senior member, Mr. Indradutt Lakhanpal's motion. And coming from District Una, sir, this issue holds a great deal of importance for my district, for my region. As far as forest fires are concerned, as far as the situation of droughts or of floods are concerned, and even landslides are concerned, this is a grave issue that concerns District Una as a whole. सर, हर वर्ष हम देखते हैं हमारे यहाँ पर कि जब भी कभी कोई बाढ़ आती है या कभी अगर हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट फायर लगती है, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट मशीनरी होती है, जो हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन द गवर्नेंस के सिस्टम होते हैं, दे सीम वेरी वेरी हेल्पलेस. Before becoming a member of this August House, sir, I also had the privilege of representing my own ward in the Jila Parishad of Una. और वहाँ के वे सदन में भी सर हमने इस विषय के ऊपर बड़ी बारी चर्चा करी. जैसे अभी मेरे रिस्पेक्टेड कॉलीग्स ने भी पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स इन दिस कंसर्न डिपार्टमेंट के बारे में मुद्दे उठाए. साथ साथ में सर हमें साइंटिफिक वेज पे हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं उसके ऊपर भी विचार विमर्श करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऑनरेबल स्पीकर सर, if we see statistically, 27.73% of Himachal Pradesh is under forest cover. We have the Shivaliks on one side, we have the Western Himalayas on the other side, we have the Trans-Himalayan region, which gives a very beautiful cover to our state. But it is very unfortunate that at the end of the day, despite having this geographical natural beauty around us, we are not able to utilize the scientific developments that have been taken place over in our country, over in the globe in the last few years, in the last few decades, and utilize them to our benefit. सर, जब तक हम बात करते हैं डॉपलर रेडार्स की, अगर हम अपना कंपैरिजन करें दूसरी स्टेट्स के साथ, the usage of such technology is also very very low. आज रूल 130 के अंतर्गत यहाँ पर यह मुद्दा उठाया गया. मैं एक बारी फिर से मेरे रिस्पेक्टेड कॉलीग लखनपाल सर का धन्यवाद करता हूँ. ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है सर, एंड आई थिंक that once we are all done speaking on this, and because this is not going to be put to a vote, I would request the Honorable Chief Minister sir also, since the department is under his command, that we at least form an advisory committee on this thing, or one of the departments should be given a directive on this. For example, all the DFOs within all the districts, they should be carrying out regular, either quarterly if not monthly, reviews of their zones. हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवैध कटाई होती है सर. साथ साथ में बहुत सारे जो पेड़ हैं जिनकी कटाई नहीं होनी चाहिए उनकी कटाई होती है. जो निर्धारित जो वहाँ पर क्वांटिफिकेशन करा जाता है उसके आधार पे भी कटाई नहीं करी जाती है. सो एक साइंटिफिक बेस्ड अप्रोच सर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एज आई जस्ट सेड, हमारे ज़िला परिषद ऊना में भी ये मुद्दा उठाया गया था. वहाँ पर एक हमने इनिशिएटिव लिया था सर, वेयर वी हैड डायरेक्टेड all the block officers within the DFO who come within the jurisdiction of the DFO to carry out sustained planting activities, जिसका हम उसके बाद quantification analysis करें कि हर सीजन में, हर एक ईयर में उसका क्या बेनिफिट हुआ हमारे इकोसिस्टम के विदिन. एंड साथ साथ में सर, because I come from Gagret विधानसभा, I would like to bring to your notice कि हमारे यहाँ पर सर एक जोन पड़ता है सब डिवीजन अम्ब का. तो मेरे यहाँ पर अगर कभी भी कोई आग लगती है
अगर कोई भी एक इमरजेंट सिचुएशन आ जाती है, सो द ब्रिगेड इज कॉल्ड फॉर फ्रॉम द सब डिविजन ऑफ अम। सो ये भी एक विचार करने वाली चीज़ है। इसका मैं जो एक फॉर्मल प्रस्ताव है आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी रखना चाहूँगा कि उसका भी जो एक है हमारे सब डिवीजन में जो है उसका प्रावधान करा जाए। जो आज का मुद्दा है सर, वो क्योंकि इट्स ऑन द नेचुरल इकोसिस्टम, बट क्योंकि जब हम फायर की बात करते हैं सर, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस, अभी 1 महीना पहले मेरे मुबारकपुर के रीजन में एक लेबर कैंप में आग लग गई थी। उनके जो है झुग्गी झोपड़ी में वहाँ पर 3 बच्चों की जो है वहाँ मृत्यु हो गई। दैट वॉज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रीजन क्योंकि हमारे यहाँ पर एक फायर ब्रिगेड की उपलब्धि नहीं है। बट अगेन आई वुड नॉट लाइक टू डाइग्रेस फ्रॉम द इशू बिकॉज वी आर हैविंग अ डिस्कशन ऑन अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। सर, जहाँ तक बात आती है लैंडस्लाइड्स की, जहाँ तक बात आती है अर्थक्वेक्स की, वी हैव ऑल सीन द ट्रेजेडी दैट हैज टेकन प्लेस इन कंट्रीज सच एज टर्की एंड सीरिया इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। साथ ही साथ सर हमने ये भी देखा है कि अभी जोशीमठ में क्या हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू लॉर्ड हिज एफर्ट वेयर ही directed the concerned departments to create and prepare a detailed report on landslides and the sinking zones in the state. I think it is also very important that our state government reaches out to the national government because we belong to a seismic zone 5 area, sir. Himachal Pradesh belongs in seismic zone 5 and we don't want to come into a situation like Joshimath. जोशीमठ में भी सर 5 साल पहले किसी ने एनविजन नहीं करा था, वहाँ पर एनटीपीसी का प्रोजेक्ट था, बहुत सारी बातें हुई बट कोई एक्शन नहीं लिया गया। एंड वी नो एंड वी नो थ्रू द मीडिया आज वहाँ पर वो किस सिचुएशन में है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम साइंटिफिक डेवलपमेंट्स को सर आगे बढ़ावा दें। मैं अप्रिशिएट करता हूँ पॉइंट को कि वी नीड टू स्ट्रक्चर एंड रीस्ट्रक्चर ऑल आर डिपार्टमेंट्स, बट अलॉन्ग विद दैट अ लॉट ऑफ फोकस एंड एम्फेसिस नीड्स टू बी गिवन टू द टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट सर। साथ साथ में सर मेरा मानना है कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ सोसाइटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर इसमें। इफ वी सी एनजीओज दैट आर ऑपरेटिंग इन एवरी ब्लॉक, इन एवरी विधानसभा, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, दे शुड बी रोप्ड इन बाय द गवर्नमेंट वेयर इन दे कैन ऑल्सो प्ले अ वेरी बिग रोल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, साथ साथ में प्लांटेशन की एक्टिविटीज को आगे बढ़ावा देने के लिए, साथ साथ में सरकार को भी कहीं ना कहीं सचेत करने के लिए। सो जैसे सर हमारे यहाँ पर हेल्थ में रोगी कल्याण समिति होती है, आई थिंक ये ऑगस्ट हाउस इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक चर्चा कर सकता है कि जब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण की, व्हेन वी थिंक ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो कहीं ना कहीं हम उसको भी मद्देनजर रखते हुए वी कैन कम अप विद अ कमिटी जहां पर सर हर एक विधानसभा में भी इसके ऊपर एक वॉचडॉग एसोसिएशन बन सके। साथ ही साथ में सर लास्टली मैं यही कहना चाहूंगा कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बॉट अप एट अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। जो विश्व भर में हो रहा है, जो हमारे देश में भी हो रहा है सर। ओनली अ कपल ऑफ मंथ्स अगो द स्टेट्स ऑफ मिजोरम एंड मणिपुर, दे ऑल्सो फेस्ड एन अर्थक्वेक। अब वो बोलते हैं सर जब आपके ऊपर खुद पे बीतती है तभी आपको रियलाइज होता है व्हाट इज द रियलिटी ऑफ समथिंग। सो आई रियली होप कि हिमाचल प्रदेश हमारा जो इतना ब्यूटीफुल राज्य है, लाइक माय कॉलीग ऑनरेबल MLA Mr. Sultanpuri said, we need to conserve that sir, and we need to take all the steps in the right direction. Once again I would like to thank the Chief Minister because he has already showed his far-sightedness in this. उन्होंने already जो है अपना इसके ऊपर जो है डिपार्टमेंट को ऑलरेडी अपनी तरफ से he has already given the initiative. And I hope that this August House can come together and formulate points on the preservation of our environment in the near future. I would once again like to thank you for giving me this opportunity to speak for the first time today, sir. And I would also like to thank my honorable colleague, Mr. Indradat Lakhanpal, to having raised such an important issue in the House. Thank you, sir. Thank you. Thank you.